ध्यान दीजिए प्रोबेबिलिटी का मतलब सबसे पहले याद रखना प्रोबेबल है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। उन इवेंट्स को ही कवर किया जाता है जो श्योर नहीं होते, नॉट श्योर। एनीथिंग विच इज श्योर और एनीथिंग विच इज इम्पॉसिबल, ये दो चीज को कभी प्रोबेबिलिटी का कवर नहीं किया जा सकता। जो श्योर है 100% होगा ही होगा, और जो इम्पॉसिबल है कि हो ही नहीं सकता वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली चांस, इट्स अ गेम ऑफ चांस बेसिकली, कि ऐसा होने का क्या चांसेस है। तो ये हमेशा 0 से ऊपर होगा और 100 के नीचे होगा। 0 होते ही इम्पॉसिबल, 100 होते ही श्योर इवेंट, तो उसके बीच में होना चाहिए। कोई भी चीज का जब प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज ऑलवेज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये टोटल नंबर ऑफ केसेस को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं, इसका सैंपल स्पेस है। अब इसको इस तरीके से समझने से बहुत बेटर होगा। कोई भी एग्जांपल, सबसे पहला केस किसी भी चीज को समझने के लिए प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले कॉइन्स आता है। पहले 1 कॉइन होता है, हम लोग एक कॉइन को फ्लिप किए, उछाले टॉस किए। इफ यू फ्लिप 1 कॉइन टॉस, व्हाट विल बी द आउटकम्स? व्हाट आर द प्रोबेबल आउटकम्स? बेसिकली इट कैन बी ईदर हेड और इट कैन बी ईदर टेल। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल स्पेस, अगर तुमसे सैंपल स्पेस पूछा जाए तो सैंपल स्पेस विल बी ईदर हेड और टेल। तो सर जी सैंपल स्पेस कितना हो गया? 2। अब तुमसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पीए, फेवरेबल केस, इन दोनों में फेवरेबल अपने को हेड चाहिए, फेवरेबल कितना है? 1। टोटल नंबर ऑफ केस में, तो बेसिकली 50% चांस है कि हेड आए, 50% चांस है कि टेल आए। खत्म हो गई चीज। एक कॉइन समझना बहुत है। अब सर जी आइए हम लोग बात करते हैं 2 कॉइन की, 2 कॉइन्स। अगर 2 कॉइन्स का बात करेंगे तो दोनों पूछा है, इधर वी कैन गेट हेड हेड इन बोथ द कॉइन्स और टेल टेल। इट कैन in the first head, in the second tail, in the first tail, in the second head. These are the 4 possible outcomes, 4 possible outcomes which we can get. So this becomes our sample space. This is our sample space. कोई दिक्कत? Any problem with this thing? Sir, what is the probability of getting 2 heads? Not in the sample space we can get 2 heads only in the one case. The probability becomes 1 by 4. Any problem with this thing? Clear? Sure. Sir, probability of getting 2 tails in the sample space, the probability of getting 2 tails, sir ji, only 1. So 1 by 4. Any problem with this thing? Sir ji, probability of getting only 1 head. Only 1 head. That means we can't get more than 1 head. Only 1. Has to be 1 only. 1 head, 1 head. It has to be 2 by 4. The probability of getting no heads. No heads. Here there is a head. Here there is a head. There is a head. 1 by 4. Any problem with this? The probability of getting at least 1 head. At least 1 head means 1 head or 2 heads. You can't go below 1. At least the minimum is 1. Minimum is 1. At least 1 head means minimum 1 head. So it can be either 1 or 2. So 1 or above. So 1 head, there are 2 cases. 2 heads, 1 cases. Total favorable outcomes 3. So the probability getting it. The probability of getting at most 1 head. At most 1 head मतलब maximum 1 head. You can only go for maximum 1 head. Maximum 1 head means there can be a case of 0 head or there can be a case of 1 head. Can there be 2 heads? No. Maximum. So 2 head will not be taken into account. 0 head. Sir ji, 2 tails. 1. 1 head. 2. So favorable outcomes is 3. The answer is 3 by
4. Any problem with this thing? Sure, pakka. Now, when we used to toss one coin, the sample space was 2. When we tossed two coins, the sample space was 4. So there is a formula of calculating sample space in case of faces. The sample space can be calculated by 2 का power n. Now sir, see how many faces over here? 2. 1 coin. 2 coins. 4. So if there is 3 coin, it will be 8. 2 का power 3. So 2 to 4, 4 to 8. That means we can say face to the power number. Number of coins. समझ में आता है ये चीज? Clear? Sure? पक्का सर? Now take the case of 3 coins. So the sample space will be 8. Now the main problem is how to draw a sample space. Now see, 8. Divide 8 into 2 parts. How much? 4. So first 4 heads, 4 tails. Now divide 4 into 2 parts. 2. 2 heads, 2 tails. 2 heads, 2 tails. We can do it. Now 2 half. 1 head, tail, head, tail, head, tail, head, tail. This is the way to form a sample space. Any problem with this thing? So what is the probability of getting 3 heads? 3 head होने का क्या probability? 1 by 8. Any problem? What is the probability of getting? What is the probability of getting 2 heads? 2 हेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा सर? 2 हेड्स होने का. क्या यहाँ पे 2 हेड्स? 2 हेड्स, 2 हेड्स, 2 हेड्स. It will be 3 by 8. Any problem with this? Clear? Sure. What is the probability of getting at least 1 head? Now tell me. At least 1. It means minimum 1. So there can be case of 1 head, 2 heads or 3 heads. Yes or no? Correct? So 1 head, 1, 2, 3. Correct? 2 heads, 1, 2, 3. 3 heads, only 1 case. The answer is 7 by 8. Any problem with this thing? Clear? Sure? What is the probability of getting at most 2 heads? At most 2 मतलब maximum 2 heads. So there can be 0 heads. There can be 1 head. There can be 2 heads. Can there be 3 heads? No. No. 3 head नहीं हो सकता. तो there is total sample spaces 8. Total sample spaces. So if we can get this thing, so we can deduct that and we can get these 3. Yes or no? So 3 heads होने का probability there is only 1 case. So 8 minus 1 equal to 7. Getting it? So instead of calculating all these 3, just calculate this one and deduct from the sample space. We can get the answer easily. Any problem with this thing? Clear है चीज? पक्का सर? Sure? सर जी, कॉइन्स के बाद डाइस का केस. अच्छा, डाइस का मतलब समझते ना? पासा. We are talking about 1 dice. Number of faces बता बेटा. Number of faces 6. That means if we roll a dice, we can get either 1, 2, 3, 4, 5 or 6. Now the sample space is 6. Any problem with this thing? Now as per the formula, face to the power numbers. So 6 ka power 1, sample space has to be 6. Now question: what is the probability of getting a 3? 1 by 6. Favorable event only 1. So 1 by 6. Any problem with this thing? What is the probability of getting an odd number? You know, when we are talking about odd, we are talking about 1, 3, 5. So 3 by 6. Any problem with this thing?
It will become 1 by 2. What is the probability of getting even number? 3 by 2. Sir, 2, 4 or 6. That means 3 by 6. What is the probability of getting a multiple of 3? 3 or 6? Yes or no? The answer is 2 by 1 by 6. Any problem with this? Sure. Sir, what is the probability of getting a multiple of 2? It's an even number only. So it will come to 3 by 6. Any problem with this thing? Now when we are rolling 2 dice, that means the sample space will be 6 ka power 2, that is 36. First we should know how to draw the sample space of 2 dice. In the first dice it may show 1, the another may also show 1. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Yes or no? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Any problem with this thing? In the same way, 3, 1, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Last. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, and 6, 6. Any problem? We can draw this sample space. Yes or no? Correct? Now, if question is being asked, this is for first dice. If the question is being asked, what is the probability of getting same number in both the dices? Same number. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, and 6, 6. The answer will be 6 by 36. Any problem with this? Sure. What is the probability of getting a sum equal to 7? Sum equal to 7. So now the sample space is 36, we know. Now what will be the favorable events? Now see, equal to 7 I have said. So if in the first division it shows 1, the other should show 6. 2, 5, 3, 4, 3, 5, 2, 6, 1, 6 by 36. Any problem with this? Clear? A sum equal to 7 or 9. Now when we are talking about 7, the total number of sample space how much? 6. For 9, 1, 6. Can it do? 1, 6 is 7. 2, 6. Will it come to 9? अगर पहला डाइस में 1 आया तो मैक्सिमम 6 होके 7 होगा ना टोटल. अपने को 9 चाहिए. सर जी 1, 6, 7 होता है, ये पॉसिबल नहीं है. 2, 6, 8 होगा, पॉसिबल नहीं है. 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3. Any problem? 4. Sir ji, total 6 plus 4 comes to 10 by 36. Any problem with this? Clear? Sure? Pakka? Any problem? Now, okay. Sir, अब डाइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन. What is the probability of getting a sum
इक्वल टू 8, दो तो डाइस थ्रो करा, अपने को देखना है कितना प्रोबेबिलिटी है कि सम इक्वल टू 8, तो डिवाइड बाई 36 होगा, इसको समझ में आता है। सैंपल स्पेस 8, पहला में 1 आएगा तो दूसरे में 6 होके 7 ही हो सकता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं, तो पहला में 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, एनी प्रॉब्लम विद दिस? 7 हो नहीं सकता, 1 2 3 4 5 5 by 36, any problem with this? Clear? What is the probability of getting the sum greater than 9? Greater than 9, 10 11 12 हो सकता है, करेक्ट है? दोनों पासा फेंक के मैक्सिमम 12 तक भी जा सकता है, तो 12 का एक ही केस बनेगा, 11 का, 10 का, करेक्ट है? 3 2 5 और 1 6 by 36, एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? क्लियर है ये चीज पक्का? सर जी अब a pair of dice is thrown, what is the probability of getting a sum of at least 9? At least 9 मतलब मिनिमम 9, it means the sum may be 9 10 11 और 12, करेक्ट ना बेटा? 9 होने का, चल बोल बेटा, 9 3 6 4 5 5 4 6 3, एनी प्रॉब्लम? 1 2 3 4, और 10 होने का 3 केस, 11 होने का 2 केस, और इसका 1, आंसर विल बी 10 by 36, एनी प्रॉब्लम विद दिस? क्लियर है? श्योर? सम ऑफ एट मोस्ट 8, एट मोस्ट 8 मतलब मैक्सिमम 8, इट मीन द सम कैन बी 1, यस 1 हो ही नहीं सकता, दो डाइस फेंकोगे तो मिनिमम 2 आएगा, इडियट्स। 4 5 6 एंड एनी प्रॉब्लम? 2 होने का 1 3 1 2 एंड 2 4 1 3 2 2 3 1, एनी प्रॉब्लम? सर जी 5 1 4 2 3 3 2 4, एनी प्रॉब्लम? 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 7 1 6 2 5, देख हम 1 से चालू करते हैं सर, लोएस्ट, पहला हमेशा लोएस्ट, उसके इसको बढ़ाते जाएंगे, 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, जिससे चालू हो उसका रिवर्स में खत्म होता है हमेशा, 8 1 6 हो सकता है, 2 6 होगा, 3 5 4 4 5 3 6, any problem with this thing? The number of cases, यहाँ 1 यहाँ 2 3 4 हुआ ना, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5 6 5 हो रहा ना, 6 5 11 10 5 26 हो रहा है, हाँ, आंसर विल बी 26 by 36, any problem with this thing? क्लियर है? डिफरेंस ऑफ 2 इन बोथ द डाइस, चीज को ढंग से समझना, ये पॉइंट, डिफरेंस ऑफ 2 इन बोथ द डाइस, मतलब पहले में 1 आएगा तो दूसरे में 3 2 3 4
करेक्ट है तो श्योर तो और क्या केस बन सकता है बोलो? डिफरेंस ऑफ टू। अब इसका उल्टा बन सकता है क्या? श्योर 4 6 का 4, 5 और 7 तो हो नहीं सकता, 6 और 8 नहीं हो सकता। तो अब इधर वाला को करिए 6 4, करेक्ट है, उल्टा लिखना है 5 3 4 2 3। एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? क्या क्लियर है जी? पक्का था? श्योर? 1 3 का 3 1 हो सकता है, 2 4 का 4 2 हो सकता है, 5 3 का 3 5 हो सकता है, 4 6 का 6 4 हो सकता है। करेक्ट है ना? तो टोटल कितना केस बनेगा? 8/36। समझ गए चीज को? अच्छा, इफ द टू डाइसेस फिगर आर मल्टीप्लाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी इवन और ऑड? इवन आने का क्या हो सकता है? देखो 1 into 1 कितना आएगा? मतलब चीज को समझो, चीज को ढंग से देखो। ऑड इंटू ऑड विल ऑलवेज गिव यू, ये समझते हो चीज पक्का? प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं पहली बार। 1 into 2 मतलब ऑड इंटू इवन विल ऑलवेज गिव यू, करेक्ट है? श्योर तो करके देख सकते हो। 3 into 4 12 तो भी इवन ही होगा ना? इवन इंटू इवन 2 into 6 12, that means even into even will always give you even, correct है? अच्छा, even into odd 6 into 1, तो even into odd भी क्या देगा आपको? even। ये समझते हो? 4 ही केस हो सकता है, या तो ऑड नंबर या इवन नंबर। तो ऑड इंटू ऑड, इवन इंटू इवन, ऑड इंटू इवन, इवन इंटू ऑड, यही हो सकता है। ये 4 केस में कितना में इवन है? टोटल 4 केस है, आंसर इज 3/4। समझ गए? अगर बोलता प्रोडक्ट ऑड कितना हो सकता है तो 1/4। समझ गए चीज को? क्लियर है? तो अगर दोनों डाइस को मल्टीप्लाई किया जाए और पूछा जाए कि प्रोडक्ट ऑड होगा कि इवन, तो ऑड होने का प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी आने का चांस क्या है? 1/4, और इवन आने का प्रोबेबिलिटी का चांस क्या है? 3/4। समझ में आता है? ये चीज क्लियर होता पक्का? अब तुम या तो हर एक को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके देखो 1 into 1, या तो ऐसे करके देखो तो तेरे को समझ में आ जाएगा, या फिर एक वे ये है तेरे पास। समझ में आता है? चीज क्लियर होता पक्का सर जी? फ्रॉम अ सेट ऑफ 17 बॉल्स, लिखिए फ्रॉम अ सेट ऑफ 17 बॉल्स, मार्क 1 to 17, 17 बॉल्स है जिनके ऊपर नंबरिंग क्या हुआ 1 से लेके 17 तक। मार्क 1 to 17 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फुल स्टॉप। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से एक को सेलेक्ट किया। वन बॉल इज ड्रॉन एट ठीक है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability that the ball drawn is a multiple of 3 or 7, is a multiple of 3 or 7। अब चीज को देख, पहला चीज तो सैंपल स्पेस, 17 बॉल है, 17 C1 बोलते हैं इसको, एक को सेलेक्ट करना, तो उसका आंसर हमेशा 17 ही होता है। जब C1 होता है तो कोई टेंशन नहीं है, 17 ही मान के चलिए सैंपल स्पेस। मल्टीपल ऑफ 3, तो चीज को समझो फेवरेबल केसेस, तो 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। यस और नो? 15 के बाद 3 18 होता है, 17 तक ही है। मल्टीपल ऑफ 7, 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 21 होगा क्या ना? तो यहाँ पे फेवरेबल केस कितना, यहाँ फेवरेबल केस कितना? आंसर इज 7/70। क्या चीज समझ में आता है? चीज क्लियर होता पक्का सर? पहला पार्ट खत्म, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, लिखिए ना एक बार, सुनिए चीज को। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन,
पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। सर जी सबसे पहला पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया तो 2 डाइस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a sum of 7? Probability of getting a sum of 7. When it is known that first digit is greater than second one, then the second digit. अब अपने को इसके बेसिस पे काम करना है। फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन द सेकेंड डिजिट, ये बात बोल दी है। तो जब तुमसे पहले है ना सैंपल स्पेस से पहले हम फेवरेबल केसेस का बात करेंगे। सम कितना चाहिए? 7 का सम का देखिए, आप देखिए क्या आ सकता है। सम ऑफ 7 बोला था 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड यही तो हो सकता है। बट कंडीशन दिया फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन, क्या यहाँ पे फर्स्ट डिजिट बड़ा है? तो ये सैंपल स्पेस में नहीं है, क्या इसमें बड़ा है? तो सैंपल स्पेस में टोटल कितने आएंगे? सॉरी फेवरेबल केस में 3 ही आएंगे। अब आपको यहाँ सैंपल स्पेस चाहिए। सैंपल स्पेस कितना होगा? बच्चा लोग 36 लिख देते हैं, गलत। सर जी बोला फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन सेकेंड, तो सैंपल स्पेस 1 के साथ कोई भी ऐसा बन ही नहीं पाएगा, 1 ही सबसे छोटा है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, वो पूरा लाइन ही बेकार होगी क्योंकि 1 सबसे लोएस्ट है, तो वो हमेशा लोएस्ट में, तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं होगा, तो 1 का कोई सीरीज ही नहीं होगा। 2 के केस में 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है क्या? 3 के केस में 3 1 3 2, 4 के केस में 4 1 4 2 एंड 4 3, करेक्ट है ना? 5 के केस में 5 1 5 2 5 3 5 4, 6 के केस में 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6, बस यही है, करेक्ट है ना? 6 6 होने से इक्वल हो जाएगा। 5 4 9 3 12 तो 14 और 1, आंसर विल बी 3/3। समझ में आया? चीज क्लियर होता पक्का? तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन, इट इज नोन, पहले से पता है कि वो ज्यादा है, तो ज्यादा है तब फिर उस सिचुएशन में पूरा सैंपल स्पेस मत ले लेना। 36। तीसरा क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। चीज को सुनना ढंग से, पहले सुन लो। इफ द 2 numbers appearing be different, 2 numbers appearing be different, मतलब दोनों सेम नंबर नहीं आया, दोनों टेस्ट be different, find the probability that the sum is 6। आपको 6 निकालना है, ठीक है? तो 6 का फेवरेबल केस क्या क्या हो सकता है? 1 5 2 4 3, लेकिन ये केस नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंट होना चाहिए, बोला है 4 2 5 1, 1 2 3 4, 4 बाई 36 में 6 तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है। 2 numbers appearing be different, तो वो 6 केस तो आ ही नहीं सकता। तो टोटल सैंपल स्पेस 36 की जगह कितना हो जाएगा? 30। द आंसर विल बी 4/30, दैट इज 2/50। एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? क्या चीज क्लियर है? पक्का सर? श्योर? तो क्लियर है?